Students, good evening. Okay, students, yesterday we were discussing the topic that is the chapter solution. Students, now we discuss the next topic means lecture 2 of the solution chapter. Yesterday we were completing the application of the Henry's law. Students, today we discuss the methods of expressing concentration of solution. मीन्स सॉल्यूशन के हम कॉन्सेंट्रेशन को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो देयर आर द डिफरेंट वे, विद द हेल्प ऑफ दीज वे we can expressing the concentration of the solution. The first method, that is the mass percentage. Mass percentage means W by W. Students, it may be defined as the mass of solute per 100 gram of solution. Mass percentage means W by W. It is may be defined as mass of solute per 100 gram of solution. Okay. Mass percentage of solute equal to mass of solute divided by total mass of solution multiply 100. Students, now we discuss the second way or second method by which we can express the concentration of the solution. This is the volume percentage. What the volume percentage? Students, volume percentage means it may be defined as the volume of solute per 100 milliliter of solution. It may be defined as the volume of a solute per 100 milliliter of solution. Volume percentage of solute equal to volume of solute divided by total volume of solution multiply 100. The next way, with the help of this, we can express mass by volume percentage, W by V. Students, it may be defined as the mass of solute per 100 milliliter of solution. Mass by volume percentage equal to mass of solute divided by volume of solution multiply 100. The next method, with the help of this method, we can also express the concentration of the solution, that is ppm. ppm means parts per million. Parts per million, ppm. It is the part of a component per million 10 to the power 6. Per million means 10 to the power 6 parts of the solution. It is the parts of a component per million means 10 to the power 6 parts of the solution. Dear students, what the formula for this? ppm concentration means parts per million. This equal to number of parts of the component divided by total number of parts of all component of the solution multiply 10 to the power 6. It is actually ppm concentration. It is the convenient to express the concentration in ppm when a solute is present in a trace quantity. You know that trace quantity means if solute is present in trace quantity, then we can express the concentration in the form of ppm. Okay. The next process, with the help of this, we can also express the concentration. This is the mole fraction. Mole fraction is denoted by X. What is the mole fraction? You know that in the solution there are the two components, that one is the solute and second is solvent. So it may be defined as the ratio of number of moles of one component. One component means solute or solvent में से कोई एक, to the total number of moles of all the components present in the solution. यानी सॉल्यूशन के किसी एक कंपोनेंट के मोल्स से टोटल सॉल्यूशन के मोल्स का अगर रेशियो फाइंड करें तो जो आएगा उसी को हम क्या कहेंगे? मोल फ्रैक्शन. यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर फाइंड करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, देन इट इज XA. ओके, इक्वल टू Na. Na क्या है?
number of moles of solvent divided by number of moles of solvent plus number of moles of solute. अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना चाहें, अगर स्टूडेंट्स हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना चाहें, सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, देन एक्स बी इक्वल टू एन बी. एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स मीन्स एन ए प्लस एन बी. तो ऑलवेज यू रिमेंबर दैट जिसका आपको फाइंड करना होगा, अगर हमें सॉल्वेंट का फाइंड करना है तो सॉल्वेंट के मोल्स ऊपर रहेंगे और टोटल तो आपका नीचे रहेगा, और अगर हमें सॉल्यूट का फाइंड करना है तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट नीचे रहेगा. ठीक, तो दिस इज द मोल फ्रैक्शन. With the help of this formula, we can also calculate the numerical problems related to the NCERT problems and other problems. Okay, students, in solution, the sum of mole fraction of all components is unity. This means XA यानी सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो ऑलवेज कितना होता है? यूनिटी मीन्स 1. XA plus XB equal to 1 means in a solution sum of the mole of fraction of all the components is unity. Okay, the next method by which we can express that is the molarity. Molarity is denoted by capital M. It is defined as the number of moles of a solute dissolved in 1 liter of solution. यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? मोलैरिटी कहते हैं. तो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अगर नंबर ऑफ मोल्स हमें ना पता हो तो मोल्स निकालते हैं कैसे? मास में मॉलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे और इनटू वॉल्यूम इन लीटर. अगर इस लीटर को हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू 100 कितना हो गया? 1000. यानी मोलैरिटी इक्वल टू W into 1000 divided by M into V in milliliter. You know that the unity of molarity is mole liter inverse or capital M. It is also known as molar. Molarity changes with change in the temperature. क्योंकि टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम को इफेक्ट करता है और वॉल्यूम अगर इफेक्ट होगा तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी? इफेक्ट हो जाएगी. तो मीन्स मोलैरिटी चेंजेज with change in the temperature as volume changes with change in temperature. यानी जैसे अगर हम टेम्परेचर को, आपने कहा भी कि अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा और अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी क्या होगी? चेंज हो जाएगी. इसका मतलब क्या है कि मोलैरिटी चेंजेज विद चेंज इन टेम्परेचर एज वॉल्यूम चेंजेज विद चेंज इन टेम्परेचर. द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोलैलिटी. It is denoted by small m. It is defined as the number of moles of the solute dissolved in 1 kilogram of solvent. यहाँ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था बट यहाँ पर क्या है? 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, SOLVENT. तो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. अगर हमें मोल्स ना पता हो तो W by M मीन्स मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. इफ वी कन्वर्ट इनटू ग्राम देन मल्टीप्लाई द 1000. तो W into 1000 डिवाइडेड बाय M into W in gram. दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट एंड दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट. अगर इसकी यूनिट फाइंड करनी हो तो इसका तो मोल हो गया, इसको किलोग्राम, तो यानी मोल किलोग्राम इनवर्स. तो द यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज मोल किलोग्राम इनवर्स और मोलल. मोलल मीन्स स्मॉल m. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M मीन्स मोलर एंड इट इज मोलल. मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. यानी मोलैलिटी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है क्योंकि मास जो होता है, मास टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होता है. मास जब इंडिपेंडेंट होगी यानी मास में कोई चेंजिंग नहीं होगी तो उसके मोलैलिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगी. यानी टेम्परेचर को चेंज करने पर मोलैलिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दैट इज द वेपर प्रेशर. नेम से क्लियर है, वेपर प्रेशर. Vapor pressure of a liquid may be defined as the pressure exerted by the vapor above the liquid surface in a equilibrium
with the temperature, so with the liquid phase at a given temperature. Listen once again. Vapor pressure of a liquid may be defined as the pressure exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with the liquid phase at a given temperature. The vapor pressure of liquid depends on the following factor. जो वाइपर प्रेशर है, जितना प्रेशर अप्लाई होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? तो फर्स्ट फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड, मीन्स लिक्विड का नेचर कैसा है. लिक्विड हैविंग वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज, जिनके बीच इंटरमॉलिकुलर फोर्स वीक होगा, आर वोलेटाइल, वो इजिली इवेपोरेट हो जाएंगे यानी वोलेटाइल होंगे. एंड देयर हैव ग्रेटर वाइपर प्रेशर. क्लियर? देयर हैव द ग्रेटर वाइपर प्रेशर, यानी जिनका इंटरमॉलिकुलर फोर्स वीक होगा वो वाइपर वोलेटाइल होंगे, और जो वोलेटाइल होंगे उनका वाइपर प्रेशर क्या होगा? ग्रेटर होगा. ठीक. सेकेंड फैक्टर स्टूडेंट्स क्या होता है? टेम्परेचर. वाइपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज द टेम्परेचर. जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वाइपर प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. क्यों? क्योंकि दिस इज बिकॉज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द kinetic energy, Ke means kinetic energy, kinetic energy of the molecule increases, and therefore a large number of molecules are available for escaping from the surface of the liquid. क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप जानते हैं मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स तेज़ी से लिबरेट होंगे. तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी वैसे उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगी. ठीक है, इसीलिए टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर वाइपर प्रेशर क्या करता है? इंक्रीज करता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द राउल्स लॉ. स्टूडेंट्स, ऑलवेज यू रिमेंबर दैट राउल्स लॉ फॉर टू टॉपिक्स, दैट वन इज द फॉर वोलेटाइल एंड सेकेंड इज नॉन वोलेटाइल. वोलेटाइल मीन्स जो इवेपोरेट होते हैं और नॉन वोलेटाइल मीन्स जो इवेपोरेट नहीं होते हैं. तो सबसे पहले हम राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए डिस्कस करेंगे. इट इज स्टेट्स दैट द फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. अगर आपको वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए लिखना होगा तो इट स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. PA यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. PA इक्वल टू, बी रिमूव द प्रोपोर्शनल साइन, देन PA नॉट XA. अगर हम सेकेंड ऑफ सॉल्यूट के लिए फाइंड करेंगे तो सॉल्यूट के लिए PB प्रोपोर्शनल XB और PB इक्वल टू PB नॉट XB. ओके, इसमें PA और PB स्टूडेंट्स क्या है? पार्शियल वाइपर प्रेशर है. XA एंड XB आर द मोल फ्रैक्शन. PA naught and PB naught are the vapor pressure of pure components A and B respectively. ये A का है PA और PB naught किसका है? B का. ओके, if P is the total vapor pressure then according to the Dalton's partial pressure, आपने डाल्टन्स लॉ पढ़ा होगा कि डाल्टन लॉ आपने पढ़ा होगा कि अगर तमाम सारी अनरिएक्टिव गैसें किसी पॉट में क्लोज की जाएं तो जो टोटल प्रेशर होगा वो ईच गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के क्या होता है? इक्वल होता है. तो यानी P इक्वल टू, अगर दो कंपोनेंट है PA प्लस PB के होगा, और PA की और PB की वैल्यू ऊपर आपने फाइंड किया तो PA के जहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? PA नॉट XA नॉट, और PB के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? PB नॉट और XB नॉट. अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है. अगर हम यहाँ से XA की वैल्यू फाइंड करें तो इधर जाने माइनस हो जाएगा 1 माइनस XB. अब इस XA के प्लेस पर हम अगर 1 माइनस XB ये वैल्यू पुटअप कर दें तो ये हो जाएगा PA नॉट 1 माइनस XB प्लस PB नॉट एंड XB नॉट. अगर इसका मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, इसका इसमें होगा PA नॉट, इसका इसमें होगा माइनस PA नॉट XB और प्लस ये आपका ऐसे हो जाएगा. अब स्टूडेंट्स अगर हम इसमें इसका हम ट्रांसफ़र करें, इधर उधर मूवमेंट कराएं तो देखिए स्टूडेंट्स होगा क्या? PA इक्वल टू PA नॉट प्लस, यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स हमने किया क्या कि यहाँ से इसको कॉमन कर लिया. ये देखिए XB एंड XB बोथ आर द कॉमन, तो ये आपका पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा. तो यानी XB को हमने कॉमन किया तो PB नॉट माइनस PA नॉट, तो P इक्वल टू PA नॉट प्लस PB नॉट माइनस PA नॉट एंड XB. तो दिस इज द फॉर्मूला.
Now students, we discuss about the Raoult's law for the solute containing the non volatile solute. अब हम नॉन वोलेटाइल के बारे में डिस्कस करेंगे. नॉन वोलेटाइल मीन्स जो इवेपोरेट नहीं होंगे. तो इट स्टेट्स दैट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विच इज नॉन वोलेटाइल. It states that the relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute which is non-volatile. Mathematically you know that P equal to PA plus PB होता है. अगर ये since अगर हम PB को करें solute is non-volatile, अगर PB जो है non-volatile है, suppose that PB सॉल्यूट यानी बी जो आपको अगर बी को लिया जाए, बी सॉल्यूट अगर नॉन वोलेटाइल है, तो जब ये नॉन वोलेटाइल हो तो इवापोरेट होगा नहीं, इसका मतलब प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा, तो इसको निगलेक्ट कर लेंगे. तो देन पी इक्वल टू पी ए. अब पी ए की वैल्यू आपने पीछे फाइंड किया कि पी ए की जगह पर हम पी ए नॉट एक्स ए नॉट रख सकते थे. और अभी आपने पढ़ा है कि एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, तो इसकी जहाँ पे 1 माइनस हमने एक्स बी पुट अप कर दिया. अब इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ए नॉट, इसका इसमें करेंगे पी ए नॉट एक्स बी. अब इसको हम देखिए ध्यान से, अगर इसको हम इस साइड लाए, इसको इस साइड लाए, तो ये इधर आने पॉजिटिव हो गया, इधर जाने माइनस हो गया, यानी पी ए नॉट एक्स बी इक्वल टू पी ए नॉट पी. अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इधर जाने डिवाइड होगा, मीन्स एक्स बी इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी ए नॉट. तो ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. अभी आपने कहा था कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये आपका क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ये मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है? सॉल्यूट. यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. दिस इज द, इसको आप क्या कहेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. और ये क्या हो गया? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ओके, मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस. ओके, सो स्टूडेंट्स, this is sufficient for today. So all of you see this video carefully and try to understand all these topics, and after this, if you understand properly, then you make a notes, because if you have a perfect, neat and clean notes, then it is easier to again revise the topics and you understand properly. If you have the limited time, then you revise all the topics carefully, but your notes should be neat and clean. Okay, so all of you make all the notes which we have which topics we have discussed. Okay, so all of you take care. Bye bye students.